क्या पढ़ा था बिल्कुल याद नहीं आ रहा. हाउ टू राइट द आंसर्स इन थ्योरी. Will I will be able to get an exemption in theory subject? These were the exact question that was coming in my mind when I was giving my CA intermediate ka examination. Hello everyone, I am Mona Gupta, a CA final student. I scored exemption in both of the theory subject, in law and in audit. In audit, I scored 62 and in law, I scored 69 marks. So here is the 5 tips or the 6 tips that I'm going to give you for your theory subject, and that will help you definitely for your exams. First point is make your own notes. Why I'm telling you to make your own notes even though the teachers are providing the best notes? Why? Because your handwriting, your mind can understand better. When you write the answers or the particular topic by your own self in your own handwriting, your mind understand it more better way. Write the difficult topics in a graph format, in a point format, or in a diagram, in a mini, in a such a way that you can learn that concept very easily. The second point is take all the RTPs, MTPs, and the past year question paper when you are doing your first revision. Yes, this is the most important thing and student lag in it. बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलेगा एट द एग्जाम टाइम कि आप हर एक आरटीपी को रिफर करो, हर एमटीपी को रिफर करो, हर पीवाईक्यू को रिफर करो. सो जब भी आप कोई क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है पिछले बार आरटीपी में आया था, इस बार एमटीपी में आया था. तो आप जब भी उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सारे आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यू क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिखो, या तो आप कोई भी टीचर्स के नोट्स को रेफर कर रहे हो तो आप उसमें मार्क करके रखो. दैट विल हेल्प यू during your exam time to recall all the concept repeatedly. The third point is doing writing practice. अच्छा, किसी किसी को ऐसा लगता है कि मुझे लिखने की नीड नहीं है, मुझे तो आंसर ऐसे ही लर्न हो जाते हैं, तो मैं क्यों लिख के प्रैक्टिस करूँ. यस, दिस हैपन्स. मुझे भी ऐसा फील होता था कि आई एम गुड इन थ्योरी, मैं थ्योरी में अच्छे से पढ़ लेती हूँ, एग्जैक्ट याद कर लेती हूँ, बट वेन आई केम टू राइटिंग अ मॉक टेस्ट पेपर, आई थिंक दैट मेनी आंसर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट. सो when you are writing your answers clearly, your mind observe all these things whatever you have learned, और सारे concepts आपको फटाफट learn और revise recall होने लगते हैं. So if you are giving your writing practice, it will definitely help you. Take an example. ठीक है, आपने कोई questions पढ़ा, ठीक है, एक questions पढ़ के आपका वो याद हो गया. Now see that whether you are able to write those answer correctly in a same way. ICI will give you marks only when you are writing all the answers very exactly. The fourth point is writing all the answers in points, whether it is law or whether it is audit. You have to write all the answers in points unless writing paragraph is not compulsory. See, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है. तो जब तक उस टाइप के क्वेश्चंस ना आ जाए जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना बहुत मैंडेटरी हो जाए, आप सारे पॉइंट्स में ही लिखोगे आंसर. बिकॉज द पेपर जो आईसीआई के पास जाता है दैट इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म. वो सारे क्या रहते हैं, वो फोन पे ही चेक करते हैं. ठीक है, तो अगर कोई आप आंसर सीक्वेंस वाइज लिखोगे, सो ही विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड. वो आपके सारे आंसर एकदम टिक टिक करते जाएगा. अगर वो सारे आंसर्स बहुत अच्छे होंगे तो he will tick all the answers. और अगर आप पैराग्राफ में आंसर्स लिखोगे, he will think that what he has written in this entire para, and he will not be able to understand even you have written all the answers very clearly. Next point is giving at least 2 mock test paper and 3 to 4 combinations of small and big chapters. ठीक है, we assume what कि हमने आरटीपीज एमटीपीज कर लिए, सारे क्वेश्चंस याद कर लिए, अब टेस्ट देने की जरूरत क्या है. सो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो इन योर होम, तो सब समझ जाओ कि आप एग्जाम में जाके टेस्ट दे रहे हो. एंड आई होप कि आप उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहोगे, राइट. तो गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर. ठीक है, आपको कभी भी सुटेबल हो आप टेस्ट देना, बट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर एग्जाम से पहले दे के जाना. नाउ द 6th पॉइंट इज हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस will decide that whether you are going to pass or not. So let me help you in this. How to present the answer. We get 15 minutes to read the question paper, right? उस 15 मिनट को कितना वाइजली यूटिलाइज करना है. क्वेश्चन 1 नहीं पढ़ना है. वाई? क्योंकि हमें तो वो पता है ना दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड वी हैव टू अटेम्प्ट इट. यू विल रीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6. आपको जो भी क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं, वेदर इट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. आपको मानो कि 3, 4, 5
और 6 बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। आपको उसमें से जो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको इसके तीनों पार्ट आते हैं, यू विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट। 6 का तीनों पार्ट अटेम्प्ट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन आता होगा पर A B आता है और C नहीं आता, तो आप A और B लिखो, C के लिए स्पेस छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो, ठीक है। एट द एंड जब आपको एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप थोड़ा सा उस पर एफर्ट्स डालना, आपको वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। इवन अब अगर आप उस पर कुछ भी उसके रिलेटेड कोई एग्जाम का कोई पैराग्राफ या आप टॉपिक लिख रहे हो, यू विल एटलीस्ट गेट 1 और 2 मार्क्स ऑन दैट क्वेश्चन। आफ्टर अटेम्प्टिंग 3 बेस्ट क्वेश्चन, आपको MCQ अटेम्प्ट करना है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। दिस शुड बी द सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो द फर्स्ट पेज शुड ओनली बी द प्रोविजन, पूरा पेज में प्रोविजन होना चाहिए। सेकेंड पेज में फैक्ट्स एंड कंक्लूजन होना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करता है। वेदर टीचर्स और द अदर पीपल टेल दैट भरना नहीं है पेज, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट कि लेंथ मैटर्स इन योर एग्जाम। एक पेज के आंसर में तो वो आपको 5 मार्क्स नहीं देगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 पेज 2.5 पेज आंसर लिखोगे तभी वो आपको 5 में 5 देंगे या 5 में 4 देंगे वो। सो द लेंथ ऑल्सो मैटर्स अलॉन्ग विद द क्वालिटी। ईच एन आंसर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेश पेज, और हर पॉइंट्स के बाद एटलीस्ट 1 लाइन छोड़ना या 2 लाइन लीव करना, ठीक है। ऑल ऑफ दीज 6 pointers that will help you in your exam to write the theory subject. I have also made a particular video for the audit strategy and for the law strategy. You can go through with these videos to have a detailed explanation and a detailed understanding of these particular subject. I hope these 6 points will help you to clear your exams and to get an exemptions in your exams. I will be meeting you in my next video. Bye.